Hey guys, Kidna Ji, this is Yam and we welcome back to my channel. We are in Brussels, Belgium. Woohoo! And we are here for the Tomorrowland and we are here with Coke Studio and Coca-Cola India. So बहुत ही ज़्यादा dream come true moment है coming here with such a big brand and able to watch the Tomorrowland festival. It's gonna be crazy. So I'm gonna show you guys everything. I'm gonna try vlogging everything. Yeah. Unnati is gonna try doing the vlogging thing on Snapchat. अभी आपको पूरा room tour वगैरह बाद में दिखाऊंगा अभी because हमें निकलना है lunch के लिए जिसके लिए हम थोड़ा सा लेट है and that is with the team जिनके साथ हम यहाँ पर आए हैं तो उनके साथ जाके लंच करते हैं and फिर we'll leave for the festival. Very excited. चले फिर? Yes. Let's go. So guys, we are back to our room after the lunch and it's time for a very quick sweet tour. So it starts from here. This is our living room for more like 3-4 more days. Cute lamp. Very cute lamp and काफी space यहाँ पे. Plus this is the view. यहाँ से it's a parking. पीछे की parking है and उसके पीछे तो बहुत ही प्यारा है. Full greenery vibes and beautiful sky and beautiful girl. And then here we have the coffee station and here's the TV. Then we go inside. We have a dressing room here. We have wardrobes. दोनों के wardrobes यहाँ पे है. Then there's a big mirror जहाँ पे खड़े होके ready हो सकते हैं of course. And here's the washroom. Very pretty and बहुत ज़्यादा spacious. जब bathroom बड़ा होता है ना room जितना होता है I think उससे बढ़िया चीज कुछ नहीं है. Toilet area and this is the shower area. And then we go inside. Ready बैठी है. And this is our view from the room. This is very pretty. You can see वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा windmill है. यहाँ पे होती नहीं है जो बहुत हमने हॉलैंड में भी देखे थे. बहुत ही vintage से windmill वो है and बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ से. And this is our bed area. वहाँ पे भी लैंप लगा हुआ है and again another TV. अगर आपको बेड पे लेट के टीवी देखना है जो मैम को बहुत पसंद है. And that's gonna be my edit area. So guys, we are ready to go for the event. Nikki is here. She's getting ready. Nikki is ready. I'm ready. And Janilia. Janalia. Sorry, Janalia. I'll call you Jay up से. Jay, that's better. So Jay, this is the group from India who's going with the Coca-Cola team. और देखो team भी है वहाँ पे. And then super excited to go. ये हमारा होटल वैसे बाहर से भी आपको दिखा देता हूँ. And अभी यहाँ से I guess 30 minutes दूर है. The best thing is कि हमारे पास अपनी पर्सनल कार है to go because in festivals में it's so difficult to come back and इतना ज़्यादा कैब का लाइन होता है so it's very very difficult but हमारे पास कार है तो sorted है. कोक स्टूडियो की गाड़ी है. उन्नति get ready. ये ऐसे आप लगा रहे हो अभी? हाँ, और लगा रहे हो. हाँ ये तो ऑलरेडी एयरपोर्ट से आए हो आप. मैं वहीं पे आई हूँ. Perfect. So guys, we have just reached the village. Boom. It's the village. मैं आपको बताता इन्फॉर्म कर देता हूँ. यहीं पे ही टुमारोलैंड होता है. Boom. ये मैं पूरा रिसर्च करके आया था. I love how in 5 minutes after she said कि it's in the village boom. So guys, we have been boom. जैसे कि ये बड़ा रिसर्च करके आया है घर से. Same thing I said. अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो. I know everything about Tomorrowland. So guys, we have checked into the Tomorrowland festival. अपना बैंड दिखा दो. अभी हम जस्ट वॉक करके जा रहे हैं एंड म्यूजिक की आवाज़ हमें ऑलरेडी सुननी शुरू हो चुकी है एंड उससे मेरे को ये भी समझ आ रहा है कि मैं अंदर जाके एक बार म्यूजिक शुरू हो गया तो कम थोड़ा रिकॉर्ड कर पाऊंगा बिकॉज कॉपीराइट लगेगा फिर. बट यस, वी गॉट आवर passes, we got our band. Now we are heading to the main stage area
एंड उसके बाद तो आपको जो क्लिप्स दिखने वाली हैं टुमारोलैंड की वो तो That's फिर going to be insane. insane, you're gonna love it. हमारे साथ पार्टी एंजॉय करो. Let's go. टुमारोलैंड में एंटर करते हैं हम सीधा गए मेन स्टेज की तरफ बिकॉज हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे स्टेज देखने के लिए एंड स्टेज को देखकर हम देखते ही रह गए बिकॉज स्टेज इतना सुंदर लग रहा था. फिर हमने डिसाइड किया कि हम यहीं पे ही चिल करेंगे एंड बाकी स्टेजेस किसी और दिन देखेंगे बिकॉज शाम हो गई थी एंड शाम को द बेस्ट प्लेस इज द मेन स्टेज. एंड जैसे जैसे रात होती गई लाइट शो भी शुरू हो गया एंड ओ माई गॉड द एक्सपीरियंस एट द मेन स्टेज वॉज अनबिलीवेबल. ये हमारा पहला दिन था टुमारोलैंड में एंड इससे परफेक्ट नहीं हो सकता था बिकॉज द क्राउड, the music, the lights, the stage, everything was just perfect. And इस amazing experience के साथ हमारा first day Tomorrowland में हुआ खत्म. Hello guys, it's day 2 of Tomorrowland. We are very excited and we are ready to go. And उससे पहले सोचा कि आपसे आगे बात कर लें because वहाँ जाके तो impossible हो जाता है रिकॉर्ड करना is possible but बोलना yeah it's impossible because हर जगह गाने चल रहे हैं. आपने देखा है हर जगह कोई ना कोई डिफरेंट स्टेज है, हर जगह कोई डीजे प्ले कर रहा है, बहुत साउंड है तो बोलना वहाँ पे मुश्किल हो जाता है. तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि कल तो बहुत मजा आया. आपने देखा ही हमारी पूरी वीडियोस में. इट वाज टू मच फन. आई ट्राई टू रिकॉर्ड एज मच एज पॉसिबल एंड आपको एक्सपीरियंस दिखाया. एंड आज डे 2 है एंड दिस इज आवर OOTD. मैंने जैकेट पहनी है बट हाँ आपने जैकेट डाली है बट दिस इज द OOTD. एंड मैंने डाला है कुर्ता आज. ये शॉर्ट कुर्ता मैं लेके आया था एंड आई थिंक ये गोज विद द वाइब. थोड़ा रिप्रेजेंट भी हो जाता है बिकॉज लोग इतना रिप्रेजेंट कर ही रहे हैं. लेट्स गो नाउ. Let's go now and we'll show you day 2 Tomorrowland. After visiting the Cook Studio area in Tomorrowland, we again went to the stage areas to party. On our way, we also saw the Tomorrowland parade and एक stage पर इतना crazy music बज रहा था कि हम वहीं पे 2-3 घंटे रुके रहे and थोड़ी देर बाद वहाँ पे बहुत तेज बारिश शुरू हो गई. पहले तो लगा कि vibe खराब हो जाएगी but I was wrong. It got crazier. Everyone was having so much fun and DJ ने भी full kill कर दिया. बारिश में full dance करने के बाद we again went to the main stage because वहाँ पे हमारा lunch planned था. So there's a प्रॉपर रेस्टोरेंट जस्ट ऑपोजिट द मेन स्टेज एंड वहां के लिए हमारी टीम ने पहले ही बुकिंग की हुई थी. वहां पे भी हैड आवर 3 कोर्स मील लंच एंड खाना भी काफी टेस्टी था. बट द बेस्ट पार्ट इज वहां से मेन स्टेज का व्यू इज अमेजिंग. सो अगर आप भी नेक्स्ट ईयर टुमारोलैंड जा रहे हो तो इस रेस्टोरेंट की टुमारोलैंड की वेबसाइट से पहले ही बुकिंग कर लेना. 1-1 घंटे के लिए टेबल मिलता है एंड ये डेफिनेटली वर्थ इट रहेगा एंड आपको ऑन स्पॉट टेबल नहीं मिलेगा. हमारे लंच के बाद वी वेंट टू द VIP सेक्शन एरिया बिकॉज हमारे पास VIP टिकट्स थी. बट गाइस ट्रस्ट मी असली मजा पार्टी करने का नीचे ही है क्राउड के साथ एंड स्टेज के बिल्कुल पास. हेलो गाइस, डे 3 ऑफ टुमारोलैंड विद द गैंग बी यूनिक Jay and we are ready to go. Are you excited? I am. Of course. She is the Miss Tomorrowlander. She knows everything. It's her 4th time. Yeah. Yeah, so See my bands. हाँ दिखाओ क्लोजली दिखाओ. ये सब तो
2013 से लेजेंड है टुमारोलैंड के, मतलब इनको सब पता है। हमने पूरा ट्रिप इन पे छोड़ा हुआ है। ये गाइड है हमारे, हम ये यहाँ बोल रहे हैं, हम जा रहे हैं। जहाँ जितनी देर जाना है, इतना स्टेज यहाँ पे ये करना होगा ना, सब इनके मेन कारण। स्पॉट यहाँ पे नहीं बी है। यूनिक आल्सो, ही इज लाइक अस। हम डे आफ्टर टुमारोलैंड नेक्स्ट टाइम आएंगे तब हम बताएंगे। नेक्स्ट टाइम नहीं, इसके लिए आपको 4-5 बार आना पड़ेगा। हाँ, बट ठीक है, इन्होंने अपना नेक्स्ट प्लान भी कर लिया। नेक्स्ट ईयर आ रहे हैं डूड, पक्का। वाओ। तो pump। ओके, सो टुडे इज लास्ट डे टुमारोलैंड एंड आज हम रात तक वहीं पे हैं। हम बहुत पहले जा रहे हैं, अराउंड 2 बजे हम निकल रहे हैं एंड पूरा दिन ही समझ लो वहाँ पे है। आज हम वैसे स्टेज टूर पे जा रहे हैं। Enjoy the virtual Tomorrowland tour with us. Let's go. So guys, it was the last day of Tomorrowland, so we decided to do a stage tour. Almost 15 to 20 stage हैं Tomorrowland में, हमने काफी ट्राई किया and हमने फेमस ऑलमोस्ट सारे कवर कर ही लिए हैं। बट सबसे पहले गए हम कोक स्टूडियो के बूथ में जो Tomorrowland में ही है, एंड उसके बाद it was time for the stage tour. हमें तो बहुत मजा आया सारे स्टेज देखने में एंड सबकी वाइब अलग थी। बट here is your virtual tour. फर्स्ट स्टेज लोग काफी कम थे एंड म्यूजिक भी थोड़ा ओकेश था। सेकंड स्टेज बहुत क्रेजी पार्टी हो रही थी एंड ये स्टेज जस्ट रिवर के साथ में है, तो वाइब तो क्रेजी थी। थर्ड स्टेज लव द ड्रैगन सेटअप, वन ऑफ माय फेवरेट। देन हियर इज द प्लेस जहाँ पे आप खाना पीना आप कर सकते हो, दिस कॉल्ड द मेसा गार्डन एंड यहाँ पे बहुत खाने के ऑप्शंस हैं। यहाँ पे हमें इंडियन खाना मिल गया तो बेस्ट हो गया। फोर्थ स्टेज यहाँ पे एमिनेम के गाने बज रहे थे तो मजा ही आ गया। फिफ्थ स्टेज ये इंडोर स्टेज है, यहाँ पे हार्ड मेटल गाने चल रहे थे जो मेरी वाइब नहीं है, तो यहाँ से तो हम निकल लिए। एंड सिक्स्थ स्टेज वन ऑफ माई फेवरेट, लव द स्टेज। एंड ये स्टेज के लिए रास्ता फॉरेस्ट के अंदर से जाता है, क्रेजी। एंड जस्ट लुक एट दिस सेटअप, वाओ। सेवेंथ स्टेज यहाँ पे हमने बहुत टाइम स्पेंड किया है, म्यूजिक वॉज एक्सट्रीमली गुड। देन नंबर 8 वन ऑफ द मोस्ट फेमस आफ्टर द मेन स्टेज, द फ्रीडम स्टेज। यहाँ की वाइब अलग ही है, ये भी इंडोर है बट यहाँ का म्यूजिक, लाइट्स, क्राउड वाज वन ऑफ द बेस्ट। अगर बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, दिस इज द बेस्ट प्लेस टू बी। एंड फ्रीडम स्टेज परमानेंट स्टेज है, ये हर साल के टुमारोलैंड में होती है। एंड यहाँ पर होता है हमारा स्टेज टूर खत्म। ऑलमोस्ट मेन वाले सारे हमने कवर कर ही लिए एंड देन इट वाज टाइम टू गो टू द मेन स्टेज। इट वाज रेनिंग अ लॉट बट सबने डाले हुए थे अपने रेन कोट्स बिकॉज कोई नहीं मिस करना चाहता था लास्ट डे ऑफ Tomorrowland. So here are some clips of the last party of Tomorrowland 2023. गुड मॉर्निंग, इट्स डे 4 इन बेल्जियम एंड हमारा टुमारोलैंड वाला सिस्टम तो पूरा खत्म हो गया है। टुमारोलैंड का लास्ट डे था जैसा मैंने आपको बताया था एंड वहाँ से तो हम फ्री हो गए हैं। सो हमारे पास वैसे तो हम घर जा सकते थे बट हमने सोचा कि अभी आए हैं इतना ट्रैवल करके तो थोड़ा और भी आसपास की जगहें देख लेते हैं। सो वी आर गोइंग फ्रॉम ब्रसेल्स टू एंटवर्प नाउ एंड उसके लिए हम आ चुके हैं स्टेशन पे। दिस इज़ द ब्रसेल सेंट्रल स्टेशन एंड यहाँ से 1 घंटा दूर है। जिनसे भी हमने पूछा सब ने यही बताया कि ब्रसेल्स में इतना कुछ नहीं है। अगर इफ़ यू वांट टू गो टू एंटवर्प, वहाँ पे अच्छा सीन है, वहाँ पे शॉपिंग का भी एंड और भी मार्केट वगैरह बहुत अच्छी है। हमने सोचा वाई नॉट, अभी 2 दिन हम रुक रहे हैं। और बेल्जियम आई है इतना दूर तो जो भी फेमस है उसका एंटवर्प वी हर्ड अ लॉट। लोग एंटवर्प ही बोलते हैं बेल्जियम में आके कि एंटवर्प विजिट करना चाहिए। तो हम सोचे कि 2 दिन रुक के देख ही लेते हैं कि एक्सप्लोर कर लेते हैं थोड़ा, क्योंकि वापस बेल्जियम आके स्पेशली एंटवर्प जाना वेरी डिफिकल्ट। सो अभी कंट्री आएंगे तो उसके आसपास की जगह देख ही लेते हैं। लेट्स गो एंड हमारी ट्रेन पकड़ते हैं तो एंटवर्प। फाइनली फूड। मुझे एंटर होते ही कहता है कि मेरी रानी मुझे ढूंढ ही लेती है। ये सब सीखने बोल रहे हैं। ये रही मेरी रानी, दिख नहीं रही अभी कहीं पे। ये रही मेरी रानी। ढूंढ ही लिया मैंने। तेरे को क्या बोला अंदर घुसते ही कि मेरे को भूख लगी है एंड सामने ही
स्टारबक्स। तो फिर वही ना, ये मेरी रानी जो मेरे को ढूंढ लेती है। Shit. So guys, we have checked into our sweet room here in Antwerp and here's the tour. ये है हमारा वॉशरूम, ऑल वाइट, बाथटब भी है बहुत क्यूट सा, एंड here's the mirror. स्टार्टिंग में ही आ जाता है वॉशरूम, पहले ही स्टार्टिंग में आ रहा है एंटर होते ही। एंड देन here's a big, क्या बोलेंगे इसको, ड्राइंग रूम टाइप, बिकॉज यहाँ पे सोफा लगा हुआ है। एंड यहाँ पे ये हमारी किचन, पर्सनल किचन भी है साथ में, नेस्प्रेसो मशीन, केटल, सब कुछ, फ्रिज, ओवन, सब कुछ ही है यहाँ पे, मतलब बना भी सकते हैं, कुक भी कर सकते हैं अपना। एंड देन हियर द सोफ़ा, यहाँ पे एक बहुत ही क्यूट सा 2 लोगों के लिए डाइनिंग टेबल। एंड देन हियर इज़ द टीवी एरिया एंड हियर इज़ द बेड, बहुत ज़्यादा स्पेस है, तो यहाँ पे तो हम अपना लगेज खोल सकते हैं आराम से पूरा, जो हमारी सबसे ज़्यादा कंसर्न होता है। एंड देन हियर इज़ द बेड, देन यू गो आउट, ड्रिजल हो रहा है बट वी हैव अ बैल्कनी ऑल्सो। बैल्कनी होना यूरोप में आई थिंक बहुत बड़ी बात हो जाती है, वहाँ पे भी आई थिंक सबके वहाँ पे बैल्कनीज है ही है। सो वेदर अभी बहुत ग्लूमी है, थोड़ी बारिश हो रही है, तो बाहर तो अभी नहीं जाएंगे, थोड़ा रुक के जाएंगे, आई होप थोड़ी बारिश रुक जाए। सो गाइस, यहाँ के बज चुके हैं 8:30 एंड 2 घंटे की इनकी नींद और मेरी एडिट के बाद अभी हम निकल रहे हैं बाहर। बट बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल हुआ है यहाँ पे, बिकॉज लगातार बारिश हो रही है, बीच में तो बहुत तेज हो गई थी, अभी शायद थोड़ी, अभी देखो 8:30 9 बजने वाले, फिर भी लाइट है थोड़ी सी यहाँ पे। प्रॉपर बॉम्बे ही लग रहा है, बॉम्बे में ही लग रहा है, सेम ग्लूमी वेदर है, बारिश रुक ही नहीं रही है एक सेकंड भी। तो हमने अभी रिसेप्शन पे कॉल करके पूछा, उनके पास है अम्ब्रेला, तो उनसे पिक करके कहीं बाहर तो निकले, बिकॉज अभी हम आए हैं न्यू जगह, हमने देखी भी नहीं है यूरोप में, पर मैंने इतनी बारिश कभी नहीं देखी। हाँ, मतलब वो होती है 15-20 मिनट, फिर ड्रिजल ही होता है हमेशा। ये तो कभी नहीं देखी। आज का दिन तो वैसे भी हमें रेस्ट ही करना था, बिकॉज कल बहुत टुमारोलैंड में वॉक किया था, तो आज का रेस्ट। कल हमारे पास एक और दिन है, परसों का भी वैसे बोल ही सकते हैं, बिकॉज परसों भी हम चेकआउट करके बैग्स रख के थोड़ा कहीं फिर घूम जा सकते हैं, मतलब बिकॉज हमारी रात की फ्लाइट है। तो चलो अभी तो है टाइम, देखते हैं बाहर जाके एंड थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। एंटवर्प, मैंने एक बंदे को बोला एंटवर्प है ये स्टेशन, कहता एंटवर्प, मैं कहा ये नहीं, इसमें भी नहीं मैं बोल सकता, हमारे लिए एंटवर्प ही है। तो ठीक है, चलते हैं, घूमते हैं एंटवर्प। सो गाइस, वी आर आउट एंड अम्ब्रेलास हमें मिल गए रिसेप्शन से, 2 अम्ब्रेलास ले लिए हमने एंड बाहर निकले हैं। काफ़ी ठंडा वेदर है, बिकॉज मतलब मानव स्वेटशर्ट से क्या था, मैंने मानव डाल दिया। हाँ, स्वेटशर्ट लाई थी जो टुमारोलैंड में थोड़ी गिल्ली हो गई, स्वेटर सी थी वो, तो जो मैंने कल डाली थी, तो आज मानव की स्वेटशर्ट डाली। मैं स्वेटशर्ट्स कैरी करता ही हूँ साथ में, बिकॉज गर्मी भी होती है तब भी डालता हूँ मैं, मेरे को अच्छी लगती है, बट यहाँ पे तो काम आ रही है बिकॉज बाहर काफ़ी ठंड है। ब्रसेल्स में इतनी ज़्यादा नहीं थी, यहाँ पे ज़्यादा बिकॉज बारिश के कारण आई गेस। इतना टेस्टी जापानीज फूड हमने कभी नहीं खाया, फूड बेल्जियम में खा रहे हैं हम, सोचो, इट्स दैट टेस्टी। और हम हर जगह जापानीज खाते हैं, बट दिस इज द यम्मीएस्ट एवर। लुक एट दिस फूड, रामेन 100 out of 100, चिकन तेरियाकी 100 out of 100, everything, gyozas 100 out of 100. Wow, this place is called Ramen Kitchen. Ramen Kitchen है इसका नाम, I think कुछ ये है, I think नाम Takumi. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, डे 2 इन एंटवर्प एंड हैप्पी न्यूज़ ये है कि आज थोड़ी सी तो मतलब धूप निकल आई है। उठते हैं हमारा पहला, हमने कर्टन खोल के देखा कि थैंक गॉड, थैंकफुली धूप आ चुकी है, थोड़ी है, एंड आई होप ये ज़्यादा देर तक रहे, बट अगर रही तो बहुत बढ़िया, हमारा दिन चला जाएगा आज, क्योंकि कल हमने रेन वाला पूरा एंजॉय कर लिया था, वो वाला पूरा वाइब, हमारा खाना, सब कुछ कल का तो अनबिलीवेबल था। कल वाला जो जापानीज रेस्टोरेंट में हम गए उसका बता नहीं सकते, इतना बढ़िया हमारा डिनर था। तो कल का दिन परफेक्ट गया, बट आज हमें धूप चाहिए ताकि हम और घूम पाए, यहाँ की जगहें देख पाए। तो यस, रियली एक्साइटेड अबाउट दैट। रेडी हो चुके हैं हम, ये OOTD सेमी फॉर्मल, आपका तो प्रॉपर फॉर्मल लग रहा है, बट हाँ, अच्छा ओके, मतलब मैंने
सो स्वैगर, ओके ओके ओके। सेमी कैश हमने डाल लिए आउटफिट, रेडी टू गो आउट। एंड फिर जाते पहले हम खाना खाएंगे बिकॉज हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया है। इंडिया के 2 बज चुके हैं, इंडिया के 6 बज चुके हैं। सो भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। सो गाइस वी आउट ऑन द सर्च ऑफ फूड फर्स्ट। एंड एक फैक्ट बताता हूँ आपको इस जगह के बारे में, एंटवर्प के बारे में, कि इट्स वेरी फेमस फॉर डायमंड। एंड यहाँ पे फैक्ट्रीज भी हैं डायमंड, जहाँ पे ट्रेडिंग होती है बहुत सारी। मतलब हर 2 शॉप के बाद आपको एक डायमंड स्टोर, ज्वेलरी स्टोर दिख जाएगा। यहाँ पे काफी बड़ा एक डायमंड म्यूजियम, ज्वेलरी म्यूजियम, आई थिंक वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डायमंड म्यूजियम है, ऐसा कुछ है। डायमंड ज्वेलरी म्यूजियम इन टोटल, बट मेनली दे शोकेस डायमंड्स अ लॉट। लोग बोलते हैं कि यहाँ से खरीदना चाहिए। हाँ, यहाँ पे काफी हम वीडियोस वगैरह देखे तो उसमें लिखा हुआ था कि यहाँ से डायमंड ले रहे हो तो बार्गेन करो अच्छे से। मतलब बहुत जगह है यहाँ पे डायमंड लेने की। एंड उसी रीजन के कारण यहाँ पे गुजराती लोग भी बहुत हैं, बिकॉज आपको पता है कि इंडिया में गुजरात में ही सबसे ज़्यादा डायमंड का बिजनेस होता है। तो यहाँ पे मतलब इंडियंस भी काफ़ी हमें दिखे हैं, बिकॉज वो यहाँ पे रहते भी हैं। आई थिंक वो बिजनेस वे में काफ़ी अच्छी जगह है यहाँ टू स्टे। खाना खा लेंगे वरना डायमंड ले लेंगे। चलो खाना ही खाते हैं। सो गाइज वी हैव फाउंड अ स्पॉट। यहाँ पे एक पिज़्ज़ेरिया प्लेस है। एंड हमने कल एशियन खा लिया था तो हमने थोड़ा आज सोचा कि थोड़ा पिज़्ज़ा टाइप्स खा ले, चेंज ऑफ क्विजीन। यस। सो ये अच्छी लग रही है जगह, मेन मार्केट में थी, जो यहाँ पे की मेन रोड है वहीं पे थी। ऑर्डर हमने कर दिया है बिकॉज भूख मरी हो रही, तो जल्दी आते ही सीधा हमने ऑर्डर किया है। एंड क्या ऑर्डर किया हमने? हमने किया ट्रफल पिज्जा एंड पेस्टो बुफाटा। वाओ, दैट्स इट। ठीक है, लगा हमें और चीजें आएंगी। नहीं, मैं 2 चीजें आई थिंक अभी के लिए इनफ रहेंगी, फिर वॉक करेंगे। मैंने कॉफी भी नहीं पी है अपनी आज की, तो यहाँ पे साथ में स्टारबक्स है। ये तो रहा स्टारबक्स। अच्छा, कमिंग हियर, अब तक खुला नहीं है, ओपनिंग सून है। शिट, ये क्या बोल दिया, आगे ढूंढते फिर स्टारबक्स। बट वो देख धूप आ गई ना, बढ़िया, यही तो चाहिए। इसलिए हम बाहर बैठे थे। हवा बहुत तेज चल रही है, एक्सट्रीम तेज। बट मतलब मैं उड़ सकती हूँ इतनी तेज। ये तो आप देख ही सकते हो, बट के रखना पड़ेगा। स्टिल धूप है तो इसलिए सही है। तो अभी खाना खाते हैं यहाँ पे एंड फिर जाएंगे हम शॉपिंग। मानव और मैं जब भी हम एक्सटेंड करते हैं कोई भी स्टे हमारा, हम प्रेफर करते हैं कि सिटी सेंटर पे ही रहे, क्योंकि मेन यहाँ पे सब कुछ बहुत ही क्लोज होता है। एवरी फूड जॉइंट इज क्लोज, एवरी शॉपिंग एरिया इज क्लोज। एंड हम इतना लॉन्ग टर्म के लिए आते नहीं है कि 5-6 डेज है कि हम ट्रैवल कर पाए, एक्सप्लोर कर पाए। तो बार्सिलोना भी जब हमने एक्सटेंड किया था सिर्फ मानव और मैंने, तो हमने मेन सिटी सेंटर पे ही हमने होटल बुक आई थिंक वो बेस्ट डिसीजन था। तो इफ़ यू आर प्लानिंग अ शॉर्ट ट्रिप तो आई वुड हाईली रेकमेंड कि सिटी सेंटर पे ही ले लो, क्योंकि सारा सिटी भी दिख जाता है एंड वो वाइब हो जाती है, वहाँ की वाइब पता लग जाती है। मेन सिटी के पास सब कुछ आपको मिलेगा, एवरी फूड जॉइंट, एवरी शॉपिंग थिंग, एवरी स्मॉल स्टोर, सब कुछ। So it's better. Really sorry. ज़्यादा ही clearly भूख लगी थी हमें। आपको पता लग ही रहा होगा कि मैं व्लॉग लेने भूल गया खाने का जो भी आया था, क्योंकि इतनी ज़्यादा भूख लगी थी। ये देखो ख़त्म, बुरा था, ऑलमोस्ट ख़त्म ही है, तो सिर्फ पत्ते बचे एंड पिज़्ज़ा तो रगड़ गए हम सारा। सो खाना टेस्टी था बहुत। हमारा लंच हो चुका है एंड हैप्पी हो चुके हैं टमी। सो नाउ इट्स टाइम टू गो फॉर शॉपिंग।